Sharad, if you're talking, I can't hear you. Huh? So Mir, in other words, this filter thing, this works somewhat like a select query on a table, right? In where? Correct. That is correct. Just like you have a table, you can run a select query, select star from Right. table name where something equal to something. That is exactly what it does. And you can filter, I mean, you can create a filter data extension using multiple parent data extensions also, right? Or at a time, you can only use one data extension, parent data extension. I think you can use only one. Sharad, am I right? We can use only one data extension, right? To create one at a time, basically. Okay. Means I cannot join two tables using a filter, right? Not in the filter. You'll have to, I think, if you have say two data extensions, let's say employee one and employee two tables or two data extensions, you'll have to first join them together into a third data extension, or append employee two into employee one. So you have employee one having everything, and then you can filter it. Yeah, likewise we can do. Like, first of all, we have to create the data relationship between first table and second table. Once we do that, so into the filter criteria, for example, just click on filter. So below this majors, we get the relationship tables as well. So now I don't have any relationships. That's why I'm not getting these tables. But once I connect this particular assignment to table with a master database, so I'll get a option over here. यहाँ पे सब fields आ जाएगा master database से. So field mapping को कर सकते हैं, right? हाँ, field mapping कर सकते हैं. So इसका जो primary key है ये database का, वो master data के primary key से match करना पड़ेगा. That is reference वाला thing. उसका primary key इसका reference key होना चाहिए, तब जाके आपको यहाँ पे access करने मिलेगा. But before that, you'll have to, like, in a audience builder, contact builder, we'll have to create the data relation between two tables. Achha, okay. Are we going to cover that or later? Sorry? Are we going to cover that? That's not in scope over here. Achha, ठीक है, चलो. Okay, I think मैं सतीश का कोई example ले लेता हूँ. He created a template. So Mihir अभी only first name last name वाला show करना है या फिर? Yeah. So this is how we will cover AMP scripting. We first start with the syntax of using the percentage brackets. Then we'll talk about how to set the variables, and we'll also talk about how to display it using V. Okay. Right. So we'll do that to begin with, and then once that is done, then we can get into a little bit more details of how to set variables from a data extension, how to take content from data extension. That we can cover in the next session of AMP scripting. Okay. So how to declare a variable and how to write an AMP script, I'll let you know. So let me do one thing. Let me start this. So whenever you want to write an AMP script into the email, the first thing first, you'll have to drag and drop one block over here. So for example, so you can drop code snippet. Inside the code snippet, अगर आपको AMP script लिखना है तो basic syntax percentage open and close square bracket percentage. इसके बीच में आपको जो भी AMP script syntax है, जो भी variables है, जो भी conditions है, आपको इसके बीच में लिखना है, तब जाके ये
AMP स्क्रिप्ट आपको EDM में एक्सेसिबल हो जाता है. Okay? If you directly write this without any declaration, like आप यहाँ पे start कर दो set @ variable IMO the username, okay, equal to single quote में it's a string, तो ये pull नहीं करेगा. So write an AMP script, हम लोग को पहला percentage open close square bracket percentage, उसके अंदर ही अपने को AMP script लिखना है, तभी जाके EDM में एक्सेसिबल हो जाता है. सिंटैक्स उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते. लाइक अगर हम लोग को SQL क्वेरी लिखना है तो हम लोग को सिलेक्ट स्टार फॉर्म, तो सिलेक्ट इज द वर्ड टू आइडेंटिफाई द SQL. तो अगर आप वो टूल में जाओगे तो आपको वो लिखना है. काइंड ऑफ वाला AMP स्क्रिप्ट का भी यही सिंटैक्स है. ओके, इसमें अगर आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है या कुछ लिखना है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. we'll have to say set मतलब डिक्लेयर करो @ the variable name whatever you want. I want to say ABC equal to, अगर आपको नंबर पास करना है सो डायरेक्टली से 10. अगर आपको कोई स्ट्रिंग पास करना है तो इनटू द सिंगल कोट you'll have to write the string. So like यहाँ पे user is equal to email ID. So I'll copy this, set variable user is equal to email ID. When I say email underscore ID, okay, so ये column name define हो गया है अभी फिलहाल, because I didn't put single quote over here. तो अगर ये single quote अगर मैं देता हूँ, so इसको एक string as a string consider करेगा ये single quote. अगर मैं यहाँ पे कोई column name मुझे define करना है, if I know the column name from the sending data extension, I can directly say email underscore ID. This is my column name. So मैं कोई existing database लेता हूँ. सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, इंटरनेट इशू. तो जस्ट टू सेट एन कॉलम नेम, हम लोग को अगर कॉलम नेम पता है तो हम लोग उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं. Am I audible, sir? Here? Yeah, we can hear you. If you want to store any column name into the variable, you can do that. If you want to store any value into the variable, you can do that. मतलब अगर आपको सिनारियो पता है जहाँ पे आपको लॉजिक में या फिर आपके AMP स्क्रिप्ट में ये कुछ चीजें आपको यूज करनी है, तो उसको किसी ना किसी वेरिएबल में पहले स्टोर करना है, तो यू कैन यूज दैट वे. ओके, सेकेंडली if you want to store a data extension, okay, that you can do. But जब भी आप डेटा एक्सटेंशन डिक्लेयर करोगे तो यू हैव टू पास द स्ट्रिंग, मतलब आपको वो स्ट्रिंग में सिंगल कोट में करना है. आप डायरेक्टली इस तरह से डेटा एक्सटेंशन यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो फाइंड आउट नहीं कर पाएगा. तो इफ यू वांट टू डिक्लेयर द डेटा एक्सटेंशन, इट ऑलवेज बी इन अ सिंगल कोट. तो आपको इसको सिंगल कोट में डिक्लेयर करना है.
once you declare this data extension, आप इसमें जो भी कॉलम है वो डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे. There is no need like आपको कोई lookup फंक्शन यूज करना है या कुछ है, आपको एक्सेसिबल इसके पूरे कॉलम्स इसी पर्टिकुलर वेरिएबल से एक्सेस हो जाएंगे. हाँ, अगर आपको कंपेयर करना है वेयर कंडीशंस लगा के, तो आपको अलग अलग चीजें, लाइक आई विल शो यू लेटर, आपको अलग अलग चीजों से उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. ओके, so these are the two variables. So from my sending data extension, for example, set @sending equal to, मुझे मेरे सेंडिंग डेटा एक्सटेंशन से ये ईमेल एड्रेस वाला जो प्राइमरी की है उसको एक्सेस करना है. ओके, लाइक @user इज इक्वल टू email underscore id जो सेट करके रखा है. फॉर एग्जांपल दिस इज माय प्राइमरी की. मेरे डी में यूनिकली रिकॉर्ड्स इसकी वजह से सर्च हो पाएंगे. दिस इज नथिंग बट माय ट्रांसलेशन डी. यहाँ पे कोई कमेंट काम नहीं करता है. आई एम जस्ट पुटिंग अ नोट्स. प्लीज कमेंट्स यूज मत करना, एरर आ जाएंगे. तो मैंने ये दो वेरिएबल स्टोर करके रखे. एक वेरिएबल में मेरा प्राइमरी की है, सेकेंड वेरिएबल में मेरा ट्रांसलेशन डी है. नाउ अभी मुझे चेक करना है जो भी सेंडिंग डी में यूज करूंगा टू पुल द कंटेंट और टू वैलिडेट द यूजर, उसमें मुझे ईमेल एड्रेस से कंपेयर करना. मतलब सेंडिंग डी का ईमेल एड्रेस और मेरे ऑल सब्सक्राइबर और सेंडिंग डी का ईमेल एड्रेस मैच होना चाहिए. So I'm setting one more variable, user role. ये बस मैं वेरिएबल डिक्लेरेशन बता रहा हूँ किस तरह से हम लोग को हर एक चीज के लिए लगता है. दिस इज जस्ट फॉर द कॉलम. अगर आपको कॉलम नेम प्रॉपर्ली पता है तो कॉलम नेम आप डायरेक्टली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो. दिस इज आपका कोई भी डेटा एक्सटेंशन आपको पास करवाना है, वेदर इट इज सेंडिंग डी, वेदर इट इज ट्रांसलेशन डी, टेस्ट, मतलब सेंडेबल, नॉन सेंडेबल डेटा एक्सटेंशन कोई भी हो, आप सिंगल कोट में उसको पास कर सकते हो. देन अनदर थिंग इज, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपको वैलिडेशन किस तरह से करना है. लाइक फॉर एग्जांपल आया हुआ सेंडिंग डी और मेरा यूजर, इसका कंपैरिजन किस तरह से करना है. सो देयर इज वन वेरिएबल कॉल्ड लुकअप रो. अच्छा, वेरिएबल पे जाने से पहले मिहिर, इंडेप जाने से पहले किस तरह से बताना है? No, so let's do very simple. Otherwise, we'll get confused. Let's just simply create a variable for a text. That's one. Create another variable for a number, and you can show them how in your HTML you can incorporate those variables using the v function. So let's begin with that. So for text, for example, user Sharaf. Number. If I want to print this into my idiom, okay, so how I can do that? Let's go to the particular block. यहाँ पे बहुत सारी चीजें अभी इसने करके रखी हुई है. So I'll go into this block to print this variable. Okay, अभी मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल सेट करके रखा है in my AMP script. ये दो वेरिएबल मैंने सेट करके रखा. तो मुझे ये वेरिएबल प्रिंट करवाने into my HTML code. So how I do that? Just copy this variable name from the @, okay, go into their content और आपको यहाँ पे लिखना है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पैराग्राफ में दे देता हूँ. टू
प्रिंट ए वेरिएबल, लाइक आपका एम स्क्रिप्ट का जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया वो अगर आपको HTML में प्रिंट करवाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज डबल इक्वल टू अगेन परसेंटेज और इसके बीच में आपको लिखना है ट्रीट एज content into the bracket at the rate text. This is the one way to print the normal text और number अगर आपको कुछ print करवाना है तो आप इस वे से कर सकते हो. There is another one way to print that. Copy करो. Syntax same रहेगा आपका. Percentage equal to percentage. In between that आपको लिखना है v of plus. What is the difference between these two ways, Sharad? डिफरेंस नहीं है इसमें, मतलब प्रिंटिंग के लिए ये दोनों फंक्शंस यूज किया जाता है. ऐसा डिफरेंस तो नहीं है, मुझे पता नहीं. बट अगर सिंपल वे में अगर आपको करना है ट्रीट एज कंटेंट लिखना है या फिर वी ऑफ एट द लाइक आपको शॉर्ट कोड करना है तो यू कैन यूज वी ऑफ एट द. So simple, Devashi, simple use case of both these syntaxes is that if you have a variable with some value, now however you got the value, now over here Sharad has hard-coded the value, but however you get the value either from a data extension, sending D or a translation D, however you get that value by using this formula, this function V or treat as content, you can just print it anywhere you want in your email body. Not even body, you can do it in the subject. If you notice, the subject line also can take the same syntax. Your pre-header also can take the same syntax. And people might get confused between sending D and translation D. So we've actually not defined it. Now this is a very, I would say, very Eclipse term, because I've not seen that happening with other organizations like Cognizant and Accenture. But what we do is any data extension that is used for sending out emails. So that data extension will have things like email address, first name, last name, maybe country code also. That is considered as a sending D, because with that D, we'll be sending out emails. Translation D, that concept you guys will get to know a little more as we progress, where all your email body text, image locations, button locations, everything will be stored in a data extension. Now, why we would do that and what is the advantage, we'll show that as we progress. But that is called a translation D. That you will call it for dynamic content later, right? Basis user IDs. Correct. Exactly. So the best advantage of this AMP scripting is you can say if you have say email supposed to go out for 10 different languages. Normally, for other marketing automation platforms, you may need to create those 10 different variants of the email. In this case, you create only one, the design you create only one, and then you use the translation D, which will have all the translations, and it will automatically print the relevant language depending on the sending D, maybe country code or language code, depending on that parameter. It will print that relevant email in that language. So that is the biggest advantage of using sending D and translation D. Got it. Okay. So मैंने just अपना ईमेल यूज किया because वहाँ पे बहुत सारा I just set these two variables, set @text is equal to Shala, set @number is equal to 10, and I'm just printing those variable into the HTML. So simply print on सेंडिंग डी सेलेक्ट करना जरूरी है क्या?
नहीं No, not necessary. It should work. हाँ सेट एट द रेट टेक्स्ट और इसी को मैं प्रिंट कर रहा हूँ इट्स नॉट प्रिंटिंग नंबर को भी बेसिक है ये प्रिंट नहीं कर रहा है Just select a D, though that should not be the requirement actually. It should work without that. इट शुड वर्क Yeah. नॉर्मल डीज डेली का कुछ मैंने फंक्शन लिखा ही नहीं है डेटा एक्सटेंशन तो मेरे फोल्डर में नहीं मिल रहा है तो ऑल सब्सक्राइबर में से चेक कर लेता हूँ first underscore name problem so, ट्रांसक्रिप्ट के लिए कोई यूजर सिलेक्ट करने की जरूरत Not required. It should work, but it's weird actually. Why? Maybe because we had put personalization, so that's why it was requiring us to select a. मे बी हम लोगों ने वो मैंने वो डेटा एक्सटेंशन चूज करके रखा था बिकॉज ऑफ दैट सो सिंपली है मतलब मैंने यहाँ पे अभी कंटेंट में एमस्क्रिप्ट में बस ये वेरिएबल्स प्रिंट किए हुए टेक्स्ट एंड नंबर ठीक है टेक्स्ट इज इक्वल टू शरद नॉट रिक्वायर्ड आपको डबल कोट नहीं चाहिए ओके एंड दिस इज नंबर इसको प्रिंट करोगे तो एज इट इज प्रिंट कर दो ओके हियर तो सिंपल स्टेप हम लोग यहाँ पे कुछ अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करने का नहीं कोई सेंडिंग डिक्लेयर नहीं करने का नथिंग आपको जो भी प्रिंट करवाना है करवा ओके एनी डाउट तो एमस्क्रिप्ट रिलेटेड हर एक फंक्शंस का यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड कैसे उसको यूज करना है हर एक चीज यहाँ पे आपको बस जाके लाइक फॉर एग्जांपल लुकअप है फॉर लुकअप will give you each and every information about the lookup order row cs everything so lookup के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो हम लोग को यूज करनी है आपको यहाँ पे पता चलेगी so लाइकवाइज अभी हम लोगों ने जस्ट डिक्लेरेशन देखा है किस तरह से हम लोग डिक्लेयर करते हैं so now what we are going to do Sharad, this is Alok. So this declaration, what you're doing, we are not calling this data from any data extension. It's just that you're declaring it in the code and it is reflected in the email, right? right okay. We are using this for static emails. अगर आपको कोई email statically define करना है, for example आप यहाँ पे directly HTML paste कर रहे हो, right? अभी मैंने यहाँ पे हर एक चीज HTML paste कर दी है. So I can do one thing. मैं हर एक चीज को यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ each and every पारा को like hi then उसके बाद हम लोग को अगर उसको फर्स्ट नेम लेके आना है so what I can do just copy this into my variable okay let's say फर्स्ट नेम है तो let me see
columns जो मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ था यूजर ईमेल एड्रेस then I'm going to set address email underscore address equal to as I said मैं यहाँ पे column name directly pass कर रहा हूँ. One more thing, if there is a space in between your column name का text like अभी यहाँ पे email space address है okay तो वो column name capture नहीं कर पाएगा. So anyways हम लोग को ये particular स्क्वायर ब्रैकेट में उसको लिखना है तो वो एज ए कॉलम नेम वहां पे डिफाइन हो जाएगा. नाउ आई हैव टू वेरिएबल्स, वन इज टेक्स्ट, सो आई कॉपी दिस okay and another variable is email address email underscore for preview. You can see hi Mehiz dot talpade @eclux.com. तो अगर आपको कोई कंटेंट अगर रिप्लेस करना है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग HTML फिर आपको इसमें जाके चेक करना है, आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करके आपके ये वेरिएबल में जहाँ पे अपनी कंटेंट स्टोर करके रखा है वो वहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हो व्हाटएवर यू वांट, अगर आपको इस तरह से करना है. Yeah. So this AMP scripting is, can we say that it's another way of personalization जहाँ पे हमें data attribute में जाके change नहीं करना है, या फिर जैसे personalization में we used to go to data attribute and whatever is defined there as per that we can personalize. But AMP script doesn't have that limitation. We can do that as per the set value what we do in AMP script. Is that right? Sorry, please come again. Hello. Yeah. Did you hear me? Yeah, please come again. I didn't get the question. So what I was saying, like in personalization, right? So the previous training on personalization, we used to go on that personalization mode, and whatever is in our data attribute, the fields, as per that we can do the personalization, right? Like we can call the first Right. name, last name. But in Right. AMP scripting, we don't have such limitations. So ideally we define that value in AMP scripting, and we can do the personalization as per that. So we don't have to be dependent on how the data extension is defined. Yeah, that's right. But you should know the column names. So when you say personalization, another thing like you want to declare first name, last name, or using AMP script. अगर आपको कोई string pass करना है, variable pass करना है, कोई value pass करनी है, जो कि आपके scope से बाहर है, आपको कहीं पे sending D में मिल नहीं रही है, कहीं translation D में मिल नहीं रही है. Time if you want to like manually उसको enter करना है, but that should be in a scripted language. तो आप डायरेक्टली एक वेरिएबल सेट करके उसको पुल करवा सकते. Okay. पर्सनलाइजेशन इज आई कैन से आपका डिपेंडेंसी हो जाता है. पर्सनलाइजेशन मतलब आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू तो स्टोर होना चाहिए, राइट? करेक्ट. तो नाम से बुलाना है, कुछ करना है, तो समवेयर दैट वैल्यू इज स्टोर. अगर आपका डेटा एक्सटेंशन में स्टोर है तो आपको वो डेटा एक्सटेंशन से पुल करवाना पड़ेगा. सो जस्ट टू पुल एंड लाइक हम लोगों ने कल आपको दिखाया था कि पर्सनलाइजेशन किस तरह से करना है. परसेंटेज देन कॉलम नेम, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द AMP स्क्रिप्ट, क्योंकि वही स्क्रिप्ट इसको सपोर्ट करती है सेल्सफोर्स में. आपको लाइक आंसर मिला या कुछ और Yeah. No, clear. So this way you can do the normal
डिक्लेरेशन, आप वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें वैल्यूज पास करते हो। तो वैल्यूज के बाद आप जब भी पर्टिकुलर यूजर को सिलेक्ट करोगे, ओके, इफ द वैल्यूज अवेलेबल, अगर आपका हार्ड कोडेड वैल्यू जैसे मैंने पास किया हुआ है, ये हाई मेरा हार्ड कोडेड है, बट मेही डॉट पलपड़े इट्स कमिंग फ्रॉम द डेटा एक्सटेंशन व्हिच आई हैव सिलेक्टेड। आपको एक कॉलम नेम पता होगा तो आप वो कॉलम नेम भी पास कर सकते हो। मेक श्योर आप ये कॉलम नेम जब भी आप पास कर रहे हो, अगर उसके बीच में दो टेक्स्ट के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में अगर स्पेस है, पुट इनटू द स्क्वायर ब्रैकेट, आपको वो वेरिएबल उस स्क्वायर ब्रैकेट में पुल करके मिल जाएगा फ्रॉम द डी। ओके, आप पूरा का पूरा स्टैटिक ईडीएम भी आप कवर कर सकते हो। ओके, आई शो यू आपको टेक्स्ट किस तरह से प्रिंट करवाना है। इफ यू वांट टू प्रिंट अ लिंक, आपको कोई लाइक फॉर एग्जांपल, ओके, गेटिंग योर डे ना, मुझे इसको लिंक में देना है। तो एवरीबॉडी नो कि हम लोग अगर कोई भी टेक्स्ट को हाइपरलिंक करना है तो वी हैव टू यूज द एंकर टैग। ओके, so first of all I use this anchor tag. Okay, then href, it's a syntax to pass the URL into the anchor tag hash. अगर आप इस तरह से इसको करते हो तो ये पर्टिकुलर गेटिंग योर डे नेसेसिटी वाला ये जो सेंटेंस है ये हाइपरलिंक हो जाएगा। यू कैन सी ओवर हियर, आपको यहाँ पे अलग कलर में दिख रहा है, अंडरलाइन दिख रहा है। जब भी आप इसको प्रीव्यू करोगे ये हाइपरलिंक्ड है। जब आप इसको माउस ओवर करोगे तो आपको ये हाइपरलिंक है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, अभी आपने हैश दिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट सेम पेज को रीडायरेक्ट करना है। इफ यू वांट टू रीडायरेक्ट दिस पर्टिकुलर यूआरएल टू समवेयर एल्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक वेरिएबल में वो यूआरएल स्टोर करनी है। लेट्स से मैं अभी यहाँ पे एक सेट इक्वल टू यूआरएल सेट एट द रेट URL equals to www.com। मैं URL यहाँ पे पास कर दूँ। Now I want to access this URL to this particular sentence। अगर आपको URL ये particular sentence को पास करनी है तो आप किस तरह से करोगे? So you just have to go to the particular HTML block, आपको वहां पे जाके उसको पास करना है। So instead of href, how to pass the URL? So again syntax is same, percentage equal to percentage। ये syntax कभी भूलना नहीं, इसमें से एक भी परसेंटेज आप मिस कर दोगे तो वो आपका URL या फिर आपका जो भी वैलिडेशन वाला पार्ट है स्क्रिप्ट है वो काम नहीं करेगा। जस्ट टू पास द URL, so redirect to @ okay, so why I'm using redirect to, अगर मैं treat as content भी यूज कर दूं तो भी ये URL मुझे आना ही है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे redirect to की जगह treat as content, जिससे यहाँ पे तो भी URLs आ जाती है, बट देयर इज सम लिमिटेशंस। अगर आप वो करते हो तो 100 क्लिक्स के बाद वो पर्टिकुलर URL ट्रैक नहीं होती है। ये मैंने एक बार फेस किया था, so I researched on that। 100 URLs आप जब भी वो क्लिक करते हो देयर इज लिमिटेशंस। आप वो बार बार क्लिक करोगे सेम URLs पे, कोई और क्लिक करेगा तो 100 के बाद वो ट्रैक नहीं हो पाती। तो इनकेस आपको फ्यूचर में उसका रिपोर्ट देखना है, कितने नंबर ऑफ क्लिक्स हुए, कितनी बार ये यूनिकली कितने यूजर्स के थ्रू क्लिक हुआ है, तो वो नहीं कर पाते। तो रीडायरेक्ट टू अपने को ट्रैकिंग भी देता है और अपने को रीडायरेक्ट टू इटसेल्फ अ फंक्शन आपको रीडायरेक्ट करके नेक्स्ट पेज पे लेके जाता है। ओके, इसको हम लोग को देना है टारगेट तो ये अपने को न्यू विंडो में लेके जाएगी। एट्रीब्यूट, ये एक HTML का एट्रीब्यूट है। जब आप इसको टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिखते हो तो ये आप जब भी ये URL पे क्लिक करोगे ये आपको एक नए टैब पे वो URL ओपन करके दे देगा।
जैसे आप इस पे माउस ओवर करोगे ना, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको पता चलेगा content hyphen builder equal to c in the end मुझे मिला है www.eclux.com. ओके, अब ये URL काम नहीं कर रहा बिकॉज जब भी मैंने डिक्लेरेशन किया है, अगर वो सिक्योर्ड है, so we will have to put https:// then www.eclux.com. Now you people can see, पहले यहाँ पे कुछ आ रहा था contact builder something 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 then eclux.com, right? जैसे मैंने उसको https दिया तो वो एक hyperlink बन गया. जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, ये मुझे eclux.com के पेज पे लेके जाएगा. Okay, just I give the target equal to underscore blank, इसकी वजह से उसने मुझे न्यू टैब पे लेके गया है. अगर मैं उसको रिमूव कर दूं तो ये पेज छोड़ के वो इसी पेज पे eclux.com को लोड करेगा. ओके, तो दिस वे आपको अगर कोई URL पास करनी है तो आप वो भी कर सकते हो. मेक श्योर आपको URL वर्किंग फॉर्म में चाहिए तो इसको HTTPS रखो. तो जो भी सिक्योर्ड है तो सिक्योर्ड रखो, नॉन सिक्योर्ड है तो HTTP रखो. दिस वे यू कैन डू दैट. तो आप पूरा का पूरा इडियम, लाइक आपको कोई इमेज भी पास करनी है. Okay, so this is the image, right? If I want to pass this image into the variable, I can do that. Simply Control X. ऐसा नहीं है कि आपको AMP एक ही जगह पर डिक्लेयर करना है. You can declare it anywhere. HTML कोड में पर्टिकुलर सिंटैक्स लिख के यहाँ पे भी वेरिएबल सेट कर सकते हो. image इक्वल टू सिंगल कोट में वो इमेज पास कर दो. दिस इज वन, आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, इमेज है. इमेज कंटेन URL HTTPS मतलब एक काइंड ऑफ URL है. तो अगर आपको वो सोर्स में पास करवाना है, सो जस्ट गो इनटू दैट पर्टिकुलर इमेज सोर्स, right? Percentage equal to again percentage direct to @ okay, you can sensitive अभी ये जो आपका पर्टिकुलर इमेज है ये एक वेरिएबल से पास हो रहा है. सो अगर आप कंटेंट में जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो सोर्स में आपको एक इमेज दिख रहा है. दैट कम्स फ्रॉम द वेरिएबल. दिस वे यू कैन डू दैट. नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये वेरिएबल पता है, आपको पता है ये इमेज चेंज करनी है, यू नो द वेरिएबल, जस्ट गो इनटू दैट वेरिएबल और आप उसको रिप्लेस मार सकते हो. बेटर है कि आप एक जगह AMP कोड लिखोगे, ओके, तो दैट विल हेल्प यू कि आपको एक ही जगह जाके रिप्लेस करना है. अगर आप हर एक ब्लॉक में लिखोगे, लाइक मैंने अभी यहाँ पे इमेज पास कर दिया, राइट, तो मुझे हर एक ब्लॉक में जाके चेंज करना है. वही मैं अगर ये मेन AMP ब्लॉक में कॉल करवा के रख देता हूँ, इमेज यहाँ पे मैं पास करता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मुझे किसी ने बोला कि नहीं अभी मुझे ये इमेज नहीं यूज करनी है, आई जस्ट वांट टू चेंज द इमेज, तो मुझे पर्टिकुलर ब्लॉक में जाके चेक करने की जरूरत नहीं. आई नो द वेरिएबल नेम, आई गो इनटू दैट वेरिएबल, इमेज रिप्लेस कर दूंगा, वो अपने आप EDM में नीचे जाके आपके ईमेल टेम्पलेट में इमेज रिप्लेस करके दे देगा. सेम फॉर आपका CTA बटन. ओके, सो दिस इज द CTA कोड. ये पर्टिकुलर CTA का आपको एंकर टैग ढूंढना है. सी द टारगेट ब्लैंक. टारगेट ब्लैंक इज नथिंग बट इस पे क्लिक करोगे तो न्यू टैब पे ओपन करेगा. यहाँ पे स्टाइल में इसका सब कुछ डिफाइन किया हुआ है. फॉन्ट साइज क्या चाहिए, फॉन्ट फैमिली आपको कौन सा चाहिए, इसका कलर आपको कौन सा चाहिए. कलर इज दिस लाइक ये आपका टेक्स्ट कलर है, FFFF इज अ टेक्स्ट कलर. क्लिक हियर.
देन आपका टेक्स्ट अलाइन सेंटर होना चाहिए, मतलब ये जो वर्ड्स है वो सेंटर अलाइंड होनी चाहिए। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, मतलब इसको कोई अंडरलाइन नहीं होना चाहिए। डिस्प्ले ब्लॉक, बैकग्राउंड कलर, ये जो इसके बैकग्राउंड में आपको ब्लू कलर दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट दिस कोड, दिस इज हेक्साकोड। इसका बॉर्डर होना चाहिए सॉलिड, ये सब चीजें स्टाइलिंग का पार्ट है। ओके, नाउ दिस इज HTTP, you can see instead of that I'm going to first redirect to @URL। मुझे पता है मैंने वो वेरिएबल सेट करके रखा हुआ है, so I just pass that variable over here। टाइटल is nothing but आप जब इस पे माउस ओवर करते हो, let's say रिव्यू करूंगा मैं इसका। जैसे मैं इसके ऊपर माउस ओवर करता हूं तो यू सी क्लिक हियर नोट, दैट इज नथिंग बट टाइटल। आपने पास किया कि ये पर्टिकुलर बटन किसके लिए रिडायरेक्ट करता है। क्लिक ऑन दिस इज अगेन गोइंग टू equals.com। दिस वे आप CTA में कोई अगर URL पास करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल, आप वो भी कर सकते हो। ओके, सो अभी फिलहाल के लिए तो इतना ही है। लुकअप वेरिएबल्स एंड एवरीथिंग विल सी टुमारो। So any question? Now this what Sharad is showing are all static assignments. So the reason why we have started with static assignments is to show you how these static variables can be added in maybe an image or a CTA or even text. Tomorrow onwards, what we're going to do is we are going to start doing lookups. Now in lookups, what we're going to do is read the data extension. And let's say your record is in the 5th record of the data extension, then how to pick up only the 5th record and use that in your email. Or if you want to use the 15th record of your data extension, then how to use the first name from the 15th record into your email, or how to use the URL from the 15th record. That is what we're going to do starting from tomorrow using lookups. So this is the foundation. So is there any question in how to set variables and how to pass variables to the various elements of an email? स्टैटिक के लिए आपको ये पूरा का पूरा AMP वाला पार्ट इस वे से हेल्प करता है कि आपने अगर मल्टीपल ब्लॉक्स बना के, इमेज के लिए अलग ब्लॉक बना के रखा हुआ है, CTA के लिए अलग है, बॉडी कंटेंट के लिए अलग है, आपका फुटर एक अलग ब्लॉक में चल रहा है, तो ब्लॉक इज नथिंग बट कंटेंट ब्लॉक। आपका हर एक ये पर्टिकुलर सेक्शन एक कंटेंट ब्लॉक है, तो आपको हर एक चीज में नहीं जाना है। आप अगर एट द टॉप आप AMP में वेरिएबल्स डिक्लेयर करके अगर उसको पास करते हो, यू नो द वेरिएबल कौन से ब्लॉक में कौन सा वेरिएबल है। लाइक ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 अंडरस्कोर इमेज मैंने वेरिएबल बना के रखा है, आई वांट टू चेंज द सेक्शन 1 का इमेज, तो आप डायरेक्टली AMP में जाके चेंज करो, प्रीव्यू निकालो, आपका ADM में रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ओके, नो नीड टू लाइक आपको ब्लॉक में जाना है, फिर वो इमेज कहाँ पे वो सर्च करना है, फिर उसको रिप्लेस मारना है, वो करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली डू इट थ्रू स्क्रिप्टिंग वाला। So tomorrow we're going to check the lookup. Lookup is nothing but आपका डायनामिज्म। आपको हर एक ब्लॉक में अलग अलग कंटेंट अवेलेबल है, वो अलग अलग कंटेंट अलग अलग रोज में अवेलेबल है, तो वो पर्टिकुलर रो से वही सेम कंटेंट कैसे कॉल करवाना है, उसके लिए क्या वेरिएबल मैपिंग होना चाहिए, आपका किस तरह से कॉलम, दैट वी कैन लेटर डिस्कस ऑन टुमारो कि किस तरह से लुकअप फंक्शन काम करता है। तो मीनवाइल अगर आपको ज्यादा रिसर्च करना है हाउ द लुकअप वर्क्स, तो दिस इज द साइट ampscript.guide। आप इसको सर्च करो गूगल पे, लुकअप फंक्शंस के बारे में पता चलेगा। लुकअप फंक्शन इज नथिंग बट योर वेयर कंडीशन। लाइक आपको फ्रॉम दिस डेटा एक्सटेंशन मुझे ये वैल्यूज पुल करवानी, वेयर इज नथिंग बट आपका कंडीशंस। शरत के आगे शरत लेके आओ,
आपका लास्ट नेम के आगे लास्ट नेम होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये कंडीशन मैच होगी तो ये वैल्यू पुल करके आओ। दिस इज अ लुकअप फंक्शन। आप अगर चाहते हो तो यू कैन स्टडी दिस लुकअप रोज एवरीथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। यहाँ पे लुकअप नहीं, AMP में जितने भी वेरिएबल्स या फिर जितने भी आप वी कैन से ये एट्रीब्यूट्स है, लुकअप देन पर्सनलाइजेशन स्ट्रिंग है, जस्ट क्लिक ऑन द सिंटैक्स। तो किस तरह से इसको डिक्लेरेशन किया जाता है, किस तरह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसने ऊपर पहले 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करके रखे, उसके बाद उसमें वैल्यू पास किया। नो नीड टू डिक्लेयर दिस वेरिएबल, हम लोग डायरेक्टली पास भी कर सकते हैं। तो दीज आर द सिंपल स्टेप्स अंडरस्टैंडेबल है कि किस तरह से इसको पास कर सकते हो, किस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। HTML में कुछ हाइपरलिंक्स वगैरह आपको देना है, सो यू जस्ट नीड टू नो बेसिक HTML कि आपको किस तरह से वो टैग कहाँ पे रिफ्लेक्ट करवाना है। That's it. कोई क्वेश्चन है? नहीं? No questions from me. Guys, if there are no questions, I'll give you a basic simple assignment covering the same things. And then if we have any difficulties in doing it, then we can take that tomorrow before we start the lookups. Okay. All right. Thank you. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you.